Welcome to the Creating Wow podcast. Dharmendra Jain from Yash Technologies and Sanjeev Agrawal from Impetus and various other companies. ये दाल बाल्टी की कचौरी है और ये हरी मिर्ची की चटनी जो बहुत स्पेशल है। अच्छा। In your mind, you will say Indore has become a global city. मुझे लग रहा है आई थिंक 3 से 4 साल में वी शुड बी एट द ग्लोबल मैप। हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं डेफिनेटली। तो अगर पर्पस क्लियर है हमारा, जिसको हम नॉर्थ स्टार जैसा बोलते हैं, अगर वो हमारा क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, अगर वो क्लियर है और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं, कोई रीजन ही नहीं आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। Heart, Indori heart. How do you maintain that? बट एक कुछ तो है इंदौर में, एक अट्रैक्शन जो एक हमको जोड़ के रखता है, एक सम स्टिकीनेस। But from an entrepreneurial point of view, जब आपने चालू करी थी, शायद मुश्किल से 1, 2, 3 इतनी कंपनीज होती होंगी। जब मैंने चालू करी थी शायद इतनी कंपनीज होती होंगी। आज कम से कम ऐसा बताते हैं 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं इंदौर। मेरे ख्याल से टैलेंट अवेलेबिलिटी आई कैन से कि उस साइज पे अवेलेबल नहीं था। इसी कारण से आप देखोगे कि हमने जैसे हैदराबाद में भी शुरू किया, पुणे में भी शुरू किया उसी समय, क्योंकि हम तो कोएग्जिस्ट करते थे इंदौर के साथ बाकी शहरों में भी। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जो इंदौर में आज भी नहीं है और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी। Your values have changed, your personality has changed. थोड़े से बाल सफेद होने के बाद I think if I look back for me, probably my core is same. I'm proud of that. Like at least I maintain my core values. I don't compromise with my value system. Although I understand I have to be practical when I deal with people. So sometimes I think I try to be practical, but as my core from the heart, I'm still the same person, I would say. कभी ऐसा मन में आया कि यार इंदौर छोड़ के कहीं और चलते हैं? ऐसा not the company but on a personal level. Welcome to the Creating Wow podcast. This is the podcast where we look at the person behind the persona. You know, if you look at Indore on the global map, you will see Indore is still a very tiny dot. But when you try to zoom in a little bit, you will see that a very nice technology ecosystem has developed in this very small but beautiful city. This ecosystem has been developed by a few companies, and representatives of those two companies are here with me today as my very special guests. Today, we will try to see what these people and these companies have done to help the ecosystem go from literally zero and nothing about 3 decades ago to what it is today, employing thousands and thousands of people in this cleanest city of India. These people have made Indore their karma bhumi, and today we are going to see what makes them tick. Today I have with me Dharmendra Jain from Yash Technologies and Sanjeev Agrawal from Impetus and various other companies, right? In this podcast, what we do, Dharmendra and Sanjeev, I do not introduce. I ask you to introduce yourselves, and we remove the designations, we remove the paraphernalia, and I want to know who you are as people, as persons, as human beings. So Sanjeev, can we start with you? So, Siddharth, thanks for inviting me here. As for the answer to your question, who I am, I would say I'm a person of integrity who continues to practice integrity in every area of life, whether it is personal or professional. Now, I think by integrity, I'm sure you understand it's not only kind of a honesty or it is related to truth or trust. It's basically integrity. Holistically, it's a kind of keeping my word everywhere and respecting every other's word, basically. So when I look back from my schooling days also, I mean, I remember in 12th, people gave me the title Simple Living and High Thinking. So somehow, it's kind of part of integrity is part of my life. I continue to practice that everywhere, whether it is personal side, family side, dealing with my wife, dealing with my kids, or dealing with my colleagues in the office. So I try to maintain my word. I try to maintain my commitments, and I expect the same from others. So sometimes it's difficult for me, I would say difficult for people to deal with me because they expect a lot of flexibility in their words. So I would say sometimes I suffer a lot in my life because I expect too much from people. So in short, I would say I'm a person of integrity. I would like to continue to practice that. Thank you so much, Sanjeev. Who are you?
So, normal person, very simple. Again, I'm the one who believes in relationships. I believe in connections. I think it's very important because unless there is a connection, why somebody will get connected with you, why somebody will work for you. और वो देखा है मैंने. So I think that becomes very, very important for me, and that has really helped me personally and professionally both. Because professionally, definitely, we are people, who are working for 25 years. Personally, I'm still connected with everybody who was from school, everybody from my family. No matter, I may not be able to do it very frequently, but I make sure that I remember them on special days, and that connection is maintained. Care is again very, very important aspect of my personality, whether it is friends, family, or office, and that also goes in everything we do. So I think that's what. Little bit curious always to do new things, to learn new things. So that's again another thing which is very, very important. धर्मेंद्र को फिर गुस्सा कब आता? संजीव ने बोला कि यार if people are not standing by their word, धर्मेंद्र को गुस्सा कब आता? गुस्सा वैसे तो मुझे पूरा नहीं आता, एंड आई कैन बी ऑनेस्ट हियर बिकॉज वेरी, वेरी रेयर. मैंने पूरी लाइफ में किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा होगा आज तक. Okay. तो नहीं आता, लेकिन ये जरूर है कि जब लोग अपने या दुख कब होता है? हाँ, दुख ये होता है जब लोग कहते हैं और करते नहीं है. तो वही है ना, डू व्हाट यू से एंड दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. वॉक द टॉक जिसको हम बोलते हैं, एंड से व्हाट यू कैन डू. तो वहाँ ज़रूर कभी कभी लगता है कि भाई अगर आपको नहीं करना है तो ना करो. So be upfront and honest about it rather than beating around the bush. पर उसके अलावा कोई चीज़ मुझे ऐसा फ्रस्ट्रेट और गुस्सा नहीं करती है. आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई एज्यूम कि हर आदमी को एक अलग तरह से बनाया है और हर आदमी की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है. तो कभी कभी ऐसा होता है जो बहुत ही मेरे से जूनियर होंगे और मुझे आके बोल के जाएंगे कि ये सर ये गलत है, आपको ये नहीं आता है, ये अपने को ऐसे करना चाहिए था, विच इज़ फाइन. आई ऑलवेज टेक इट एज इनपुट कि भाई ये सीखने की चीज़ है मेरे लिए कहीं ना कहीं. And nobody is perfect, right? There's always scope for improvement. एब्सोल्युटली, हाँ, वी ऑल आर लर्निंग लाइक दैट. So do you think your values have changed, your personality has changed थोड़े से बाल सफेद होने के बाद? I think if I look back, for me, probably my core is same. I'm proud of that. Like at least I maintain my core values. I don't compromise with my value system. Although I understand I have to be practical when I deal with people. So sometimes I think I try to be practical, but as my core from the heart, I'm still the same person, I would say. मैं ये बोलूँगा कि when I started, I used to expect everybody to think like me, act like me, do things like me. And then later on I realized कि भाई everybody is not the same. सबका अपना strength है. They are good at or better than me at a lot of things. So I accepted people like that, and then that also changed a lot of things in my behavior. So that was one big. Even for me, I think it has changed because जब मैं स्कूल में था, I was the shyest person ever. घर में कोई आता था तो मैं ऊपर जाकर के छुप जाके बैठ जाता था. And then after you start your company and all of that, you have to be. We're talking about being thrust into a public stage. तो थोड़ा सा वो आपको खोलना पड़ता है. You meet people who are absolutely new and you have to start selling also sometimes. नए व्यक्ति को देख कर के you have to start selling also. So that part, at least in my last, I think, from school to college to professional life, at least that has changed in me a lot, I feel. A lot actually. क्योंकि अगर मेरे कॉलेज के दोस्तों से पूछोगे, I was totally different. और स्कूल के दोस्तों से पूछोगे, बोले यार हम इसको पहचानते नहीं बिल्कुल. All right. So thank you so much for this very nice introduction. I don't think इंदौर में कोई लोग आपको इस तरह से जानते होंगे. Person behind the persona. And thanks for this opportunity actually to let people know about us. तो अपन सब इंदौर के हैं. Our companies have incubated in Indore, grown in Indore. When you look back 25, 30 years ago, all of us started here. Our professional journeys, our careers, we started here. And we're still here. So what do you think Indore lacked at that time? I think lack was nothing but that intention or a serious intention about building IT here. वो मीटिंग्स बहुत हुई, हमने देखा है, वी हैव बीन पार्ट ऑफ दैट मीटिंग ऑल ऑफ अस, पर वो उस तरह का सीरियस इंटेंशन हमें नहीं दिखा जो अब दिख रहा है पिछले कुछ सालों में. बट फ्रॉम एन एंटरप्रेन्योरल पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने चालू करी थी, शायद मुश्किल से 1, 2, 3 इतनी कंपनीज होती होंगी. जब मैंने चालू करी थी शायद इतनी कंपनीज होती होंगी. आज कम से कम ऐसा बताते हैं 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स हैं इंदौर में. मेरे ख्याल से टैलेंट अवेलेबिलिटी आई कैन से कि उस साइज पे अवेलेबल नहीं था. इसी कारण से आप देखोगे कि हमने जैसे हैदराबाद में भी शुरू किया, पुणे में भी शुरू किया उसी समय, क्योंकि हम तो को एग्जिस्ट करते थे इंदौर के अलावा बाकी शहरों में भी.
मेजर रीज़न यही था कि वो स्केल उस समय इतना बड़ा इकोसिस्टम स्ट्रांग नहीं था जहाँ वो स्केल अवेलेबल हो। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जो इंदौर में आज भी नहीं है और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो आई थिंक वो एक बड़ा फैक्टर था जिसके कारण हमको वेंचर आउट करना पड़ा दूसरे शहरों में। Sanjeev, what do you think? When I look back, I think 33 years ago, 93, when I started my journey with Impetus, I think that time the city was, in terms of the IT landscape, as you said, there are only probably 3 or 4 companies. I mean, I would say, I remember only 2 or 3 companies. हाँ, उस समय कुछ भी नहीं था। 93 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि I mean, ये इतना बड़ा आईटी हब और ये सब क्या होता है। फिर धीरे धीरे बैंगलोर के बारे में सुनना शुरू किया एंड ऑल दैट। But during this journey, I think one of the senior IS officer, he was MD AKVN, Mr. Vivek Agrawal, I can quote him. He founded this Crystal IT Park. Where we are sitting right now. Yes, there we are sitting right now. So I think he invited me and Mr. Vinay Chajlani to the site when digging was happening. कि यहाँ पे हम क्रिस्टल IT पार्क बनाने जा रहे हैं। इस IT पार्क को कैसा होना चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एयर कंडीशनिंग कैसी होनी चाहिए, कैसी स्पेस प्लानिंग होनी चाहिए। दैट टाइम आई रियलाइज कि नाउ ही इज द पर्सन हु इज रियली क्रिएटिंग अ बिग विजन फॉर इंदौर। And I think that day I still remember, and he has been an instrumental person in kind of creating a growth map or IT scenario in Indore. तो गवर्नमेंट का काफी अच्छा रोल रहा है। So जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस उस पॉइंट से दिखना शुरू हुई, and I think slowly they have created this smart building in the city, and this is the current landmark of Indore, I would say, for as an IT hub. And उसके बाद जब सेकेंड उसका फेज देखूं मैं तो क्रिस्टल IT पार्क बन गया, बट अब उसको somehow it got paused and उसमें कोई completion नहीं हो पा रहा था. Then I've been dealing with different IS officers, different MDs of AKVN but no one was able to take the decision. And finally, the day came when in 2012, Mr. Raghvin Singh was the collector of Indore, and fortunately he was also holding the charge of MD AKVN. I discussed with him the plan, like we are ready to take the space. He said, can you commit the space? I said, I can commit one building, but what about others? So I said, definitely I can talk to my friends, talk to my industry peers. And if you remember, I gave one letter. I requested Infobeans to give another letter. I requested Dharmen from Yash to give another letter. So these 3 letters really helped to transform that. They're thinking that, okay, we are really serious players in the city. And they finally decided, along with the industry minister, to co-create again. And they finally made it operational in 2012. Yes. After what, 14-15 years here we are sitting in this building, and your idea इंदौर की पहचान हो गई, लैंडमार्क हो गई है. कभी ऐसा मन में आया कि यार इंदौर छोड़ के कहीं और चलते हैं? पर ऐसा, not the company but on a personal level. No, not at all. कुछ तो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, 1-2 फ्रस्ट्रेशन मुझे पता है जो अपने सबकी कॉमन है. बट कभी ऐसा नहीं लगा कि यार बैंगलोर चलते हैं, पूना चलते हैं? इंदौर के अपने एडवांटेजेस हैं, तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अगेन यू हैव टू सी ए सिटी एज ए पैकेज. बट एक कुछ तो है इंदौर में, एक अट्रैक्शन जो एक हमको जोड़ के रखता है, एक सम स्टिकीनेस. मतलब वो आप इंदौर के खाने को बोले हैं या इंदौर की कल्चर को बोले हैं, बट कुछ तो है जो इंदौर नहीं छोड़ने देता है. एंड आई एटलीस्ट पर्सनली आई कैन से फॉर माई सेल्फ, जिस दिन से मैंने इंदौर, आई एम नॉट फ्रॉम इंदौर, बट जिस दिन से मैंने इंदौर में कदम रखा, मैंने ग्रेजुएशन के लिए मैं इंजीनियरिंग करने इंदौर आया था, उस दिन के बाद से मैंने इंदौर छोड़ा नहीं, ना कभी छोड़ने का मन हुआ. ग्वालियर झांसी एरिया से. मैं इको करूँगा बिकॉज मैं भी जयपुर से हूँ. 88 में पहली बार इंदौर आया, और ये शहर अपना देता है कहीं ना कहीं, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देता है और जो भी है, लेकिन आपको बांध के रखता है कहीं ना कहीं. और इसलिए सोशल इंफ्रा या जो सोशल कनेक्शंस है यहाँ पे, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. और पार्टी तो यहाँ का कल्चर है मेरे ख्याल से, तो हम सब जानते हैं. तो इसलिए उस कारण से फैमिली वाला पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे जैसे मेरे भी डाजी कॉलेज में थे, आपके भी वहीं है, और वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि बच्चों की स्कूलिंग और सब अच्छी जगह है, तो वाई टू लीव दिस सिटी व्हेन यू आर गेटिंग. और हमारा ग्लोबल एक्सपोजर उससे कभी भी मिनिमाइज या कम नहीं हुआ, तो इसलिए आई थिंक सबसे बड़ा आप दोनों को ही यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि आप इंदौर में रह के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट इंदौर. खासकर 15-20 साल पहले तो लिटरली बताना पड़ता था यार एक इंदौर एक शहर है, मध्य भारत में है, वो सब है.
आज फिर भी लोग जानते होंगे, बट स्टिल देयर इज अ स्ट्रगल, आप कुछ भी कहो. Absolutely. From a professional point of view also, when you go to, let's say, Europe or America and you try to pitch yourself, that struggle is there. From a personal point of view also, साउथ के लोग इंदौर का अभी भी नहीं जानते. वो ये मुझे बड़ा दुख होता है, बोलते हैं यार भोपाल के पास है क्या. Like यार क्या बात कर रहे हैं यार. So that struggle is there. I think even today to some extent it is there. वो है थोड़ा सा तो है ही. Correct. But I think family, at least in my case, family has been a very big factor. I'm born, brought up in Indore. My 3-4 पीढ़ी से तो हम इंदौर में है ही, at least whatever I know. So that part for me personally has been there. But इंदौर में रह करके again ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कुछ we have to do some personal sacrifices to grow the business. Again आपको global business बनाना है, आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अब तो. But जब छोटी थी, जब struggling period था, एक growing period था, कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस भी लगे होंगे बिकॉज ऑफ द सिटी या बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन. बिकॉज ऑफ द सिटी थोड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, बिकॉज वो बड़ा नेटवर्क आपको इंदौर में नहीं मिलता है. बड़े जैसे नेस्कॉम या बाकी फोरम्स, बाकी कॉन्फ्रेंसेस, जितने बड़े स्पीकर्स हैं, बड़ी इवेंट्स हैं, वो सब बड़े शहरों में ही प्लान होती है. तो वो एक रहता है. पर्सनल साइड पे डेफिनेटली ओवरऑल आपके काम के कारण ही आपको, वो तो आप बड़े शहर में रहते तो और ज़्यादा सेक्रीफाइस होता. मुझे लगता है वहाँ हमने कुछ बचत की है कि एटलीस्ट हमको थोड़ा टाइम मिला है जहाँ हम फैमिली के साथ भी उतना ही बैलेंस कर पाएँ या इंटीग्रेट कर पाएँ अपने वर्क को भी. बट मुझे लगता है कि सेक्रीफाइसेस कम हुए और हमको रिटर्न ज़्यादा मिला इंदौर में इन द लॉन्ग रन. नहीं, बट शुरू में कभी मुझे तो याद है थोड़ा सा कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ ही जाता है. अब अमेरिका जाना है, वो 3 फ्लाइट चेंज करके जाता है. हाँ देखिए वो now I can understand your pain. I understand your pain. Definitely that level of infrastructure has to be improved. From Mumbai to New York you can go without stopping. Right. नहीं वो तो देखिए. You can go nowhere without stopping. And the smallest example is the Sharjah flight कि वो हम उसमें ही डिफरेंस जो हम सीधे 10 से 12 घंटे बचा रहे हैं, जो हम यहाँ से पहले बॉम्बे जाते थे, फिर फ्लाइट के लिए वेट करते थे या चेंज करना पड़ता था, तो कम से कम वो 3 घंटे में हम सोचना भी नहीं पड़ता और शारजा पहुंच जाते हैं, दुबई पहुंच जाते हैं. तो डेफिनेटली दैट इज वेरी मच नीडेड एज ऑफ टुडे आल्सो कि अगर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंदौर की बढ़ जाती है, दैट विल रिड्यूस अ लॉट ऑफ पेन फॉर. I remember in the good old days, again 20, 25, 30 years ago, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी. एब्सोल्युटली. कंपेयर टू अ बैंगलोर और अ बॉम्बे. आपकी कुछ मुस्कुराहट आ रही है. कुछ किस्सा याद आया. 64 kbps की इंटरनेट लीज लाइन पहली हम लोगों ने ली थी इंदौर में, और मैंने 64 kbps की इंटरनेट लीज लाइन का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा की एमपी अपनी श्रीमती सुमित्रा महाजन जी को इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था. It was such a big deal. Such a big deal. Yes. Such a big deal. Yes. So yeah, those kind of sacrifices I'm talking about. ये frustration होता है कई बार, but I think you are right कि वो family और खासकर खाना वो वापस हमें यहाँ इंदौर खींच लाता है. Yes. तो ऐसा कोई किस्सा याद है क्या? You bring a client. Again, I'm not talking about today. Today things have changed a lot. आज तुम्हारे पास Starbucks भी है और सब कुछ है. And again, saying going back in time, कोई client को लेकर आए, उसने एकदम ऐसा मुंह बना लो, यार ये कहाँ ले आया तुम मेरे को. क्या कोई ऐसा कोई सिचुएशन याद आती है क्या? तो देखिए अगर इस टाइप की सिचुएशन बोले आप, तो हाँ डेफिनेटली आती है. अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट यूएस से आ रहा है, अब इंदौर में तो आई कांट provide a full package of entertainment. So definitely, so we had to create all these kind of. Now fortunately now Indore is branded as the cleanest city now, तो अपने आप में एक अलग ब्रांड है. तो अब वो चीज़ जो आज से 20 साल पहले प्रॉब्लम होती थी उतनी नहीं होती है. और आई थिंक अभी हम राइट ट्रैक पे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, मेट्रो आ रही है, सब कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है. तो आई थिंक थिंग्स शुड इम्प्रूव नाउ. Any story you remember? आई थिंक क्लाइंट को जाना ही सबसे बड़ा काम है पहली बात तो, क्योंकि इंदौर के नाम से उनको अनादर 1-1.5 दिन इन्वेस्ट करना है तो वो आसानी से आते नहीं है. आपको पता है हमने इतना बड़ा कैंपस बनाया है और हम कोशिश करते हैं कि ये दिखाएं, अपना शोकेस सबको दिखाएं ताकि क्लाइंट को भी लगे कि ये बड़ी कंपनी है और हमारे साथ काम करेगा. हाँ, पर वो एक मुश्किल काम है. हालांकि हम कुछ क्लाइंट को लाए हैं यहाँ पे जैसे तैसे करके, जहाँ हमारा रिलेशनशिप अगेन बहुत स्ट्रांग है, उनको लेके आ पाएँ. तो वो एक चैलेंज तो डेफिनेटली है. दूसरा डेफिनेटली यही है कि आज नाइट लाइफ जैसे कोई आता है तो बोलता है रात को कहाँ चलें, पार्टी कहाँ होती है, क्या है, दूसरी चीज़ें कहाँ हैं, जो हम बाकी शहरों में देखते हैं कि भाई कोई बाहर से आया तो उसको घूमना है, फिरना है, कहीं जाना है. वो सब चीज़ें अभी उतनी मॉडर्नाइज नहीं है हमारे शहर में, जो शायद जहाँ पे एक स्कोप है कि जहाँ पे एक
उसी तरह की लाइफ हो जैसे हम बाकी जगह देख रहे हैं या बाकी देशों में देख रहे हैं, बाकी देशों में हाँ, विदाउट इम्पैक्टिंग द कल्चर ऑफ द सिटी फॉर श्योर, बट वैसा हमको क्रिएट तो करना ही चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। जब आप किसी क्लाइंट को लाते हैं यार, व्हाट डू दे लव अबाउट द सिटी? आई थिंक एक कामनेस है इसका, यही बोलूँगा। और उनको भी हम इधर उधर लेके जाते हैं घूमने फिरने, खिलाने सराफा। पिलाने, तो वो उनको Yeah, definitely, I agree. They love the food of Indore. Even not only Sarafa, even the general food. Like when they have to take a full dinner, probably Shrimaya. They really like that spicy food. Although it's difficult for them to consume that, but even then they enjoy that food. तो इसी फूड के टॉपिक पे हमारे पास यहाँ पे फूड है। ये कहाँ की कचौरी? एनी गेसेस? ये कोई ना कोई इंदौर की फेमस जगह की होगी। ये लाल बाल्टी की कचौरी है। और वो क्या है? क्या वो बात विजय चाट हाउस की पेटी विजय से। चाट हाउस। पैटीज है, खोपरा है? और ये पैटीज है। सेवधानी, so please feel free to pick up and eat हाँ, whatever you want to eat sure, whenever. sure. Heart, Indori heart. How do you maintain that when you are in a boardroom in New York with a client, or you're talking to your colleagues from overseas? That root कि यार हम यहाँ से आए, हम तो यहीं के हैं, विदाउट फीलिंग, कई बार हमको लगता है फील शाय, अरे यार वो न्यूयॉर्क में बैठा है, मैं यहाँ पे हूँ। Have you ever felt that or नहीं? That is never the case. And if you have felt it, how do you overcome that? And the reason why I'm asking this is, कई लोग मैंने देखा है इंदौर के लोग, वो शर्माते हैं. They do not think beyond a certain small limit. And the two of you have gone beyond, not only within India, but many places overseas. You set up shop there, you set up offices there, set up development centers there, exports, selling the like. So how do you maintain that Indori heart to not change your culture, your roots, but still you become like a global citizen? जैसे हम लोग 20-22 जगह 20-22 कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, सब जगह जाते हैं, क्लाइंट के साथ भी, इंटरनल हमारी जो जनता है उनके साथ भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंज मुझे तो नहीं आता कभी भी ऐसा करने में। जैसे आज खाना खाने जा रहे हैं तो हमको पता है हमको यही खाना है, तो हम बोलते हैं भैया हमें तो देसी खाना खाना है, आपको आना है आ जाओ, और नहीं तो आप अपना खाओ हम अपना खाएंगे, टाइप ऑफ थिंग। तो दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, बट तो उतना बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता कि उस तरह से आता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग योर पर्सनल थिंग्स, पर्सनल प्रायोरिटीज, वो कभी भी चैलेंज नहीं रहा है। But there is a certain hesitation. I'm not saying in you. I'm saying जनता में एक हेजिटेशन होता है, कोई न्यूयॉर्क में कैसे जाऊंगा मैं, न्यूयॉर्क कैसे वहाँ बात करूंगा लोगों से? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ, व्हाट इज द एडवाइस दैट यू वुड गिव समबडी? मैं देखता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं देखता हूँ जैसे अपनी टीम है, कई बार अरे मैं क्लाइंट के कैसे जाऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा, ऑल ऑफ दैट। थोड़ा सा देखिए, जो नई जनरेशन रहती है, इंदौर के लोग हैं, डेफिनेटली उनको इतना अच्छा मेट्रो जैसा इकोसिस्टम नहीं मिला है, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट पावरफुली, हाउ टू ड्रेस अप एंड ऑल दैट। तो ये डेफिनेटली वो वाली कॉन्शियसनेस तो थोड़ी रहती है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं आज, या कैसे उससे बात करूं, कितनी तेज बात करूं या धीमे बात करूं, ऑल दैट। तो अंग्रेजी का क्या होगा, थोड़ा सा वो कॉन्शियसनेस इंदौरियंस में है, but I think slowly they are learning that, they are overcoming that. And if you see as you know now, we have say hundreds and thousands of startups, and people are really kind of coming up really well and coming out of that fear, I would say, जो है hesitation होता था, तो अब मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे कम हो रहा है। But any piece of advice you would like to give to somebody who is feeling that, भले वो junior हो, senior हो? I think they should continue to build their soft skills. They should continue to collaborate and communicate amongst each other. जितना वो मिलेंगे, जितना आपस में collaboration करेंगे, उतना उनका they will be open and confident on communicating. Basically, सब कुछ देखिए, it's a matter of communication between two human beings. तो अगर वो एक confidently कर दिया, तो then person can represent anywhere in the world. अगर वो effectively, powerfully communicate कर सकता है तो। थोड़ा ऑथेंटिक रहें, बहुत ज़्यादा आपको दूसरे के हिसाब से अपना कैरेक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन रहेंगे, लेकिन थोड़े ऑथेंटिक रहें, जैसे हम हैं वैसे हम हैं। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डेफिनेटली चाहिए, और उसके लिए राइट आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, आपके दोस्त उसी तरह के हों, तो आप उन्हीं के साथ थोड़ा करेंगे तो धीरे धीरे करके ये भी एक स्किल है जो सीखी जा सकती है आराम से। I would add here this as a positive thing, when you this authenticity really kind of inspires me, or really impacts me. देखिए, अगर इंदौरी है तो अगर if you compare the authenticity between different metros in Indore, you'll find Indore people are more authentic. तो देखा जाए तो it's a great thing about Indore, the culture of Indore,
कि देखिए लॉन्ग रन में वो प्ले करता है, दैट विल रियली हेल्प अ लॉट इंदौरियन की, जब अगर सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक पर्सन है, एवरीवन वांट्स टू डील विद ऑथेंटिसिटी और ऑथेंटिक पर्सन, तो मुझे लगता है कि ये दिस इज एन एडवांटेज ऑफ इंदौर द कल्चर। मुझे ये भी लगता है कि इंदौर के जो लोग हैं इन जनरल टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लोग हैं, अपन इंदौर पे फोकस्ड हैं अभी तो। हम अपने आप को ज़्यादा किसी से आगे समझते नहीं है, हम कुछ भी काम करने में तैयार हो जाते हैं। वी आर हमको प्यार से काम करवाना आता है, बजाय कि प्रोसेस दिखा के कि यार ये प्रोसेस है, यही करो बस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? आई थिंक दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मुंबई काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड अ वेरी थोड़ा-सा अनस्ट्रक्चर्ड बोलूँगा, chaotic इंदौर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। जो प्यार से काम करे, चल कर ले फिर कचौरी खा के आएंगे। अच्छा खाना आपको बहुत करवाना अच्छा आता है, लगता और है। फिर हम उसके लिए खुद भी करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा खुद का भी कमिटमेंट उतना ही दिखता है। तो वो क्या है, जब हम खुद का हमारा कमिटमेंट रहता है तो फिर हमको इजी दूसरे से करवाना भी इजी हो जाता है। So in this similar thought process, when you both of you take care of the HR process in your HR function in your respective companies, what are the advantages, disadvantages of attracting talent? Not from Indore. Indore, to you are the kings. But let's say you want to bring somebody from Bangalore, bring somebody back from Delhi, या तो वो इंदौर का ही बंदा हो या बंदी हो, उसको वापस लाना हो, या फ्रेश किसी को माइग्रेट कराना हो. How do you do that? Is that possible या मुश्किल मच है? पॉसिबल, आई थिंक वेरी मच पॉसिबल। और हम देख ही रहे हैं कोविड के बाद से भी लोग जो उन्हीं शहरों में थे अभी आ गए हैं। उसके अलावा जो शहर को बिलोंग नहीं करते वो भी हमने काफ़ी लोग हायर किए हैं इस तरह के जो आ रहे हैं, क्योंकि अब सबको पोस्ट कोविड एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बेटर चाहिए। डेफिनेटली दैट आई सी कि इंदौर में वो पॉसिबल है कि फ्लाइट कनेक्शन पहले से बेटर है। अभी जैसे हमारा दुबई का भी कनेक्शन डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट चालू हो गया, तो उनको इंटरनेशनल जाने में भी इतनी तकलीफ नहीं है। स्कूल काफ़ी सारे अच्छे हैं अब हमारे यहाँ पे, तो जो एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए अब उनको मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो बिगेस्ट एडवांटेज जो मुझे दिख रहा है, जो काफ़ी सीनियर लोगों ने मुझे बोला कि यार हमको इंदौर आके सेटल होना है, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत शहर है और आदमी चाहता है कि वो अपना समय एक अच्छे You are seeing people coming at senior levels? Yes. People are really liking. If they really get the overall offerings of Indore as a package, whether it is cleanest city, whether it's cost of living, whether it is culture, schooling, overall work-life balance, how families will feel, clean air for family, for kids, for spouse, all the family members. It's very important to get clean air and clean water, everything. So Indore provides the right environment for that. I think उसके लिए अगर हम इंदौर को अच्छे से पैकेज करें कि भाई और क्या क्या ऑफरिंग है इंदौर में, और एज फार एज देखिए आदमी टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करने, एक तो ठीक है काम के कारण आता है कि आप काम क्या कर रहे हो, आपका काम कैसा है, जो मेरी ग्रोथ है कि नहीं है, एक तो वो फैक्टर रहता है। सेकेंडली जो पर्सनल वाला फैक्टर है वो रहता है कि मेरी फैमिली क्या होगा, मेरी सेटल कैसे होगी, मैं यहाँ पे घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। तो अगर ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो इट्स अ वेरी गुड ऑफरिंग, वी कैन रियली क्रिएट फॉर एवरीवन, एंड वी हैव विटनेस दैट। हमारी कंपनी में भी कितने लोग हैं साउथ इंडिया से भी आके बसे हुए हैं, जो कि इंदौर सुना भी नहीं होगा, नॉर्थ से भी बसे हैं, ईस्ट से भी बसे हैं, तो वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स। So ultimately you think that we will win the talent war yes against the तो metros? एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। एक लास्ट वीक का ही है कि मेरे ब्रदर इन लॉ गूगल में काम करता है यूएस में, और बिकॉज ऑफ सोशल लाइफ ऑफ इंडिया वो गूगल में रिजाइन करके इंडिया आना है। बधाई आपको फिर तो इंडिया और इंदौर इंडिया अभी तो इंडिया है, बट ही विल डिसाइड। अल्टीमेटली नहीं, बट इंदौर के भी कई एग्जांपल्स हैं। हाँ, हमारे इस यहाँ तरह कितने के। लोग हैं जो दूसरे साउथ से Large यहाँ के companies 20-20, 25-25 साल से बसे। हमारे यहाँ तो जो 2-2, 3-3 डेकेड कंप्लीट कर चुके हैं वो सेटल, मतलब साउथ इंडिया के हैं या नॉर्थ इंडिया के हैं, काफी लोग हैं ऐसे, बिहार के हैं। इसमें do you think that if you are looking at engineering talent, and let's be very specific to software engineering talent, do you think there is a difference between the quality of talent that you find here and let's say a Chennai, or I'm purely talking about engineering and not talking about them as a human being, Pune या Chennai या Bangalore में, the quality of talent that you get, is it better somehow? I think it's Or not not better? related to any city. I would say you can relate with the institutes, the kind of institutes, But definitely. city में ecosystem तो बन ही जाता है ना। Bangalore is an talent magnet. हम्म। शायद आपके ब्रदर इन लॉ गूगल से जोड़ के हो सकता है बेंगलोर ही आए सबसे पहले। तो तो डेफिनेटली आई मीन
अगर हम नंबर ऑफ कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस देखें तो इंदौर में लिमिटेड हैं। तो अगर वैसे क्वालिटी ऑफ टैलेंट की बात करें तो अगर हम कंपेयर करें मेट्रो से, बैंगलोर से, चेन्नई से या दिल्ली वैली से, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ दोस अवेलेबल टैलेंट्स विल बी लेस। बट अगर हम इंदौर में जो इंडस्ट्री या गवर्नमेंट के साथ में जो रीस्किलिंग के प्रोग्राम्स हैं, अगर वो सब कंटिन्यू करें तो आई थिंक नंबर ऑफ सच पीपल, सच इंजीनियरिंग पीपल और आईटी इंजीनियर्स विल बी मोर इन कमिंग फ्यूचर। हाँ नहीं, आई थिंक टैलेंट मिलता है। सॉफ्ट स्किल वाला एक एंगल डेफिनेटली है कि एक बिग डिफरेंस है बैंगलोर वर्सेस इंदौर में, चाहे वो अच्छे कॉलेज से भी एक पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन बट ओवरऑल पर्सनैलिटी एक्सपोजर का थोड़ा फर्क है। बट उनके कुछ दूसरे एडवांटेजेस भी हैं कि उनकी लॉयल्टी बेटर है, स्टिकनेस बेटर है, अच्छा काम करते हैं, मेहनत ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनके साथ वो सारे पॉजिटिव्स मिलते हैं उसके साथ। और वही हमको शायद शुरू में तो इंजीनियरिंग टैलेंट में वो ज़्यादा चाहिए होता है। दे आर नॉट लाइक क्लाइंट इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट, आई वुड से, आई एग्री कि वो जो इंदौर वाला जो कल्चर्ड पर्सन है, जो उसकी स्टिकीनेस है, वो जितना आपके साथ रहने वाला, आई थिंक यू विल फाइंड द लोएस्ट अट्रिशन फॉर इंदौर पीपल। Yes, yes, for sure. Naturally, that is. तो going to be low. एनीवे इट्स काइंड ऑफ एडवांटेजेस फॉर द कंपनीज, राइट, कि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है कंपनी में। एंड नॉट बिकॉज ऑफ, जैसे पहले तो ये था कि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी, 4 कंपनियां कहाँ जाएंगे, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटीज सफिशिएंट हैं, स्टिल उनकी लॉयल्टी या स्टिकनेस बेटर है एज कंपेयर टू टियर 1 सिटीज। राइट राइट। तो इसी सिलसिले में I feel that there is still something that we lack in terms of hardcore engineering talent. I don't know what that is, but there is something that, Bangalore is a talent magnet. Hyderabad is a talent magnet. Indore is not that talent magnet today, at least. उस level का तो नहीं है. So if we talk about an ecosystem and we are players in this ecosystem, and I can credit the two of you at least to be pioneers of this ecosystem, what is it more that we should do? Not as a company or as an individual, I'm saying as an ecosystem. हमें मिलके क्या करना चाहिए? मिलके मेरे को लगता है कि थोड़ी सी पार्टनरशिप और बेटर हो सकती है इंडस्ट्री और एकेडमिया में, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाए। जैसे आज हम देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज में भी कोऑप मॉडल है, जहाँ पे 4 महीने आप काम करते हो, 4 महीने पढ़ाई करते हो, तो आप सीखते जाते हो। या जैसे मैंने चार्ट अकाउंटेंसी की है, तो आप आर्टिकलशिप साथ में कर रहे हो, तो सीखते जा रहे हो। अगर उस तरह का मॉडल कुछ क्रिएट किया जाए, जैसे कुछ कंपनीज ने, कॉलेजेस ने किया है, बट वो उतना इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ अक्रॉस द इंडस्ट्री, अगर वो हम कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमको टैलेंट जब बाहर आएगा, हमारे लिए पूरी तरह से सॉलिड हार्डकोर होगा, रेडीमेड होगा और कुछ हद तक कस्टमाइज भी होगा। आई एग्री कि अभी ये इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, कुछ कंपनीज ने या कुछ कॉलेजेस ने शुरू किए हैं। अगर इसका थोड़ा सा ये डेंस हो जाएगा और थोड़ा सा और कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स का, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प अ लॉट। एंड बाकी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं साथ में, उनकी तरफ से पुश है या उनकी तरफ से इंसेंटिव्स हैं इंडस्ट्री को भी, कि दे विल बी काइंड ऑफ रिएम्बर्सिंग सम सर्टेन स्टाइपेंड टू पीपल। समटाइम्स कुछ कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती हैं कि वो हम कैसे खर्चा करें नए टैलेंट को ट्रेन करने के लिए या कोलैबोरेट करने के लिए। तो ये ओवरऑल इकोसिस्टम अगर कल्चर एज अ कल्चर डेवलप हो जाता है, जैसे इंदौर में एक क्लीनलीनेस का कल्चर है, ऐसे ही इसी को एज अ कल्चर हम अगर क्रिएट करें, पूरा इंडस्ट्री मिलके और साथ में इंस्टीट्यूट्स मिलके, डेफिनेटली आई थिंक इट कैन ट्रांसफॉर्म द थिंग्स। अपन सब मिलके एक इंस्टीट्यूट ही खोल लेते हैं। वो हमारा काम नहीं। बट वी हैव टू ट्रेन ना इन। हाँ नहीं, तो आपको अडॉप्ट करना है। मैं, आप चाहो तो एक लैब या एक सेटअप कर दो जहाँ पे कि भाई ये बैच को मैं लेने वाला हूँ और ये मेरे ही जैसे चलेगा। और गवर्नमेंट उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दे जहाँ आप कोर्सेज उस तरह से बना पाओ या दूसरी चीजें कर पाओ। नहीं, और भी दूसरे फॉर्म्स में कर सकते हैं। इंडस्ट्री कैन पार्टनर फॉर द लेक्चर्स, एडिशनल लेक्चर्स, कैन हेल्प द इंस्टीट्यूट्स इन क्रिएटिंग द कोर्सेज, सम कस्टमाइज्ड कोर्सेज, कि भाई आज एआई पे कोर्स करना है, डेटा साइंस में करना है, क्लाउड इंजीनियरिंग में करना है। तो आई एम श्योर दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल हेल्प। तो धीरे धीरे एज अ कल्चर जो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो वो पीपल विल बी यूज्ड टू दैट। और सेकेंडली आई थिंक वो जो आपने बात बोली कि इन जो थोड़ा सा मेट्रोज में जो कल्चर मिलता है लोगों को, जो एक पॉलिशनेस मिलती है, उसके लिए भी अगर हम सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी कुछ कंपनीज करें, उसमें इंस्टीट्यूट्स भी करें, कुछ अलग से क्लासरूम्स करें, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करें फॉर सॉफ्ट स्किल्स, दैट विल रियली बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ दीज न्यू जनरेशन, जेन जी और मिलेनियर्स। तो
वो अपन इंडिविजुअल लेवल पे तो करती है, हर कंपनी करती है। नहीं बट वो कॉलेज लेवल पे भी College करना level पड़ेगा। पे- क्या होता है कि देखिए आज भी हम ऐसा क्यों होता है कि वो 50 बंदे जब टेस्ट में अपियर होते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो हम 2 ही सिलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो उसमें से 10 तो बेचारे ऐसे रिजेक्ट हो जाते हैं कि जो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें आता क्या है। They might be technically They strong, might- but- हाँ। हाँ करेक्ट। तो वो इंटरव्यू में इतने नर्वस हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, बट उनका आप रिटन टेस्ट लें या उनको कोड लिखने के लिए दे दें तो दे विल डू वंडर्स। तो उनको आप क्या एडवाइस देंगे ऐसे बच्चों को? They should enhance the soft skills, अपने कम्युनिकेशन बढ़ाएं। There are different tools available on internet, न्यूज़पेपर रीडिंग बढ़ाएं और कम्युनिकेट करें आपस में। But I like to pause you there. But inherent, there is a lacuna in their understanding in itself, right? Before they are coming into final year and appearing for an interview, 4 साल उनको मिले हैं टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एंड 4 साल मिले हैं सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव। दिस इज नॉट न्यू न्यूज़ कि यार सॉफ्ट स्किल्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड। आई थिंक इनहेरेंटली दे हैव अ लैक ऑफ, दे डोंट वांट टू डू दिस। नहीं दे वांट टू डू इट, बट वही बात है कि वो शर्म, हेजिटेशन, हाँ, वही नहीं, वहीं पे अटकते हैं वो कहीं। देखिए मैं इसके लिए बोलूंगा, किसी ने वैसा माहौल उनको एज अ पर्सनल लेवल पे किसी ने वैसा कोच भी नहीं किया उन्होंने उनको एज अ कोई चीज। जब क्या होता है कई बार चीजें कॉलेज में भी थोपी जाती हैं, लेट अस बी प्रैक्टिकल, कि कॉलेजेस वालों को भी अपना ग्रेडिंग की पड़ी हुई है, अपने रिजल्ट्स की पड़ी हुई है, दे डोंट केयर मच अबाउट, सॉरी टू से दैट, अबाउट कि वो उसकी सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंप्रूव हो रही हैं। नहीं, दे डू केयर, क्योंकि अगर बच्चे की नौकरी लगती है तो they can always charge more and they charge more also, and it is कि मेरे प्लेसमेंट हो बट वो गए फिर भी उस it पर is a फोकस नहीं selling कर point for them. नहीं, बट selling उस पे point, फिर भी फोकस नहीं कर। आप बताइए कितने अब इंस्टीट्यूट वही सॉफ्ट बोल स्किल्स रहा पे हूँ, फोकस वो कर रहे फिर हैं। भी that is my point, वो इनिशिएटिव ही नहीं है। हाँ, तो वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, उनको ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा कि भाई इनको, इस बच्चे को चाहिए वो सॉफ्ट स्किल्स, उसका वर्कशॉप, उसका मॉडल वैसा बनाए कि उसको जस्ट, इट इज नॉट लिमिटेड टू वन क्लासरूम ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन, इट हैज टू बी अ वर्कशॉप, कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रुप डिस्कशंस की, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, या कुछ कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीयर्स। तो जैसा हम कंपनी में कैसे करते हैं, कंपनी में हाउ डू वी coach people for communication or for such soft skills. Similarly, that can be done at the college level. It has to be done so that you are able to use those people early in the cycle rather than wait for but 6 not months. like and even those become part of daily life, like become the part of way daily they are life, yeah. learning technical skills, same way they have to learn, simultaneously the other skill as well, equal weightage. Good. So we have talked a lot about the Indore ecosystem and the IT landscape, and I think all of these nuggets of knowledge, information, and wisdom, people will definitely take them and be benefited by them. But I want to now go deeper into you as human beings. I want to know. Let's start with you, Dharmen. Go back into your past life, and I want you to tell our viewers and me also, and Sanjeev also, one story that has changed you as a human being, where you've seen yaar main to khatam ho gaya, but you came back stronger, because these stories inspire people. तो बहुत पहले की बात है, जब मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, और एक पर्टिकुलर टर्म में आई कुड नॉट क्लियर इट, और आई हैड गिवन माय बेस्ट। तो फिर मैंने डिसाइड किया अब नहीं करना है मुझे सीए, कुछ और करूँगा शायद ज़िंदगी में। और फिर घर वालों ने थोड़ा मोटिवेट किया, वो सब हुआ, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। और फिर मैं महावीर जी गया, महावीर भगवान के दर्शन करने, बीइंग ए जैन। और फिर वहाँ जयपुर ही पे, रहते थे उस समय? हाँ, तो उस समय मैं कोटा रहता था। अच्छा, कोटा है। तो वहाँ गया, और फिर कहीं ना कहीं मुझे उस तरह का एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, एक फेलियर से अगर आप पीछे हट गए तो फिर तो आप हमेशा ही लाइफ में नीचे जाते जाओगे, क्योंकि फेलियर इज बिकम, मतलब इंटीग्रल पार्ट You ऑफ लाइफ है, embraced तो हमेशा failure. ही रहेगा। Yeah. तो यू हैव टू एम्ब्रेस इट, यू हैव टू अगेन नॉट गिव अप। और वहाँ से फिर मैंने पूरा वापस चेंज दिया। नेक्स्ट टाइम में आई कुड क्लियर एवरीथिंग, एंड देन आई बिकेम वेरी फास्ट चार्ट अकाउंटेंसी, एंड देन उसके बाद शायद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। Very nice. That's very inspiring. Because CA pass karna, I think it is one of the toughest exams, right? It is tougher than JEE, I think. आई डोंट नो, बट It is a very tough thing to become a CA. और उस समय बहुत ही कम होते थे अभी भी कम परसेंटेज ही वाइज। होते हैं. It is very difficult to become a CA. Congratulations and kudos to you. Thank you. Very nice to hear that. Sanjeev, any story from you where you feel that it is something that has changed you inside, and all of us can also benefit from it and get inspired from? I remember when I was just passing out my 12th class, and
ready for the next stage of the career. Definitely इंजीनियरिंग करने का सोचा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ. तो एक जो ओवरऑल सोशल सिस्टम रहता है, तो उसमें उस टाइम, आज से मैं ये आपको बता रहा हूँ 1988 की बात, तो जब इंजीनियर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, बबीना कैंट वॉज देयर नियर झांसी, और ओवरऑल झांसी का भी अगर ये एज ए यूपी का इकोसिस्टम देखें तो वहाँ पे इंजीनियर मतलब कि वो कोई एक सिविल इंजीनियर जो कि उसकी सैलरी होगी और उसको ऊपर से काफ़ी एक्स्ट्रा कमाई करने के साधन होंगे, उसको इंजीनियर समझा जाता था. तो द प्रेशर वाज कि नहीं, आपको भी सिविल इंजीनियर बनना चाहिए. तो समहाउ इट वाज नॉट, आई वाज नॉट कन्विंस्ड कि ये ऐसा कैसे, मतलब इट्स नॉट समथिंग राइट एक्चुअली. भले ही उतनी मैच्योरिटी नहीं थी उसमें, सोशल मैच्योरिटी, बट आई थिंक समहाउ अंदर से वो, आई वाज नॉट एबल टू कन्विंस माई सेल्फ कि यार ऐसे अलग से पैसा बनाना, ये सब आई डोंट नो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. तो देन फाइनली आई डिसाइडेड टू काइंड ऑफ डेफिनेटली डू द इंजीनियरिंग, एंड I got into GSITs इंदौर and finally got computer science. And then धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि कोई एक्स्ट्रा पैसा बनाने, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से ही सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा बनाना, ऐसा सिविल तो आराम से मिल सकती थी. जब मैंने हाँ, कंप्यूटर साइंस तो टॉप ही पे ही होगी यार. टॉप पे ब्रांच होती थी, इजीली मिल जाती थी, सबको मिल जाती थी, जो चाहता था उसको मिल जाती थी. बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर दैट. आई मन में एक बार सोच लिया था कि आई रियली वांट टू क्रिएट समथिंग बिगर, समथिंग unique for myself, and I wanted to transform this thinking कि आदमी को सक्सेस सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे जो दूसरे बनाते हैं उससे मिलती है. And I think I am really happy with my life. As I shared, I practiced integrity throughout my life, and I really respect such things, that if we really do such things with integrity, if we maintain the integrity in life, that really helps. Wonderful, excellent. That is very inspiring, and as both of your stories are really inspiring, and I hope our viewers really get inspired from these stories. एक स्टोरी मैंने आपकी भी देखी थी, वेट लॉस, जो आपने लिंक्डइन पे भी डाली है. हाँ, correct. And I think that has transformed you not only physically but also in terms of willpower. Absolutely, yes. Talk about that a little bit, क्योंकि वेट लॉस तो एक बहुत बड़ा स्कैम भी है और लोगों को चाहिए. उस समय मेरा वेट था 122 किलो. अरे वाह. ओके, और अब मुझे लग रहा था कि अब वो, When was this? Is it during COVID? हाँ 2018-19 की बात है. और फिर अचानक मुझे रहा कि यार अब ये ठीक नहीं है, मुझे नीचे जाना ही है, ऊपर बहुत आ गया मैं. तो एक डाइटिशियन है जो जैन वाले ही हैं, और उन्होंने मुझे वो एक डाइट दी स्पेशली, और मैंने 12 हफ्ते में 25 किलो वजन कम किया. 12 हफ्ते में 25 किलो? हाँ, और उसमें भी 7 से 8 हफ्ता में इंडिया से बाहर. 7-8 kilos a month? हाँ, लाइक हर हफ्ते 2 किलो. हर हफ्ते 2 किलो? हाँ, यू कैन से लाइक दैट. तो कपड़ों का खर्चा ऐसे बढ़ गया होगा. हाँ, अभी मेरे पास 2-3 सेट अलग अलग साइज के कपड़े रहते हैं, आज भी रहते हैं. हालांकि मेरे डाइटिशियन ने तो बोला पुराने सब हटा दो, लेकिन वो पता है कि इंदौर में थोड़ा खाना ज़्यादा है तो कभी भी प्रॉब्लम होगी, तो वो 2-3 सेट हमेशा है. लेकिन उसने काफ़ी हेल्प किया मुझे. और फिर जब आप लाइटर होते हो तो 1-1, 2-2, 5-5 किलो का इतना फ़र्क पड़ता है लाइफ में. तो अभी भी वो जर्नी ऐसा लगता है कि वेट लॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ लाइफ है. थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा घटता है. Requires tremendous willpower. Losing weight, because I have gone through a very similar journey. हाँ, Losing weight requires a tremendous amount of willpower, tremendous control. अब ये ऐसे पकवान पड़े हैं, वो भी आप इंदौर जैसे शहर में अगर जी रहे हैं. नहीं, सिमिलर स्टोरी मेरी भी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, Weight वेट loss. लॉस की. अगर आप मेरा वेट और मेरी साइज, मतलब आज भी मेरी पिक्चर आप देखोगे पुरानी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट अराउंड बिटवीन 2001 to 2010 मैं काफ़ी मोटा था, अच्छा खासा मोटा था. एंड लोग आज जो पहले जिन्होंने देखा है, जो मेरे साथ काम किया है, वो जो आज देखते हैं, हाँ, तो क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म वर्जन देखा है, तो मतलब उसके बाद एक बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक प्रोबेबली 88 वेट से, मैं 88 में भी काफ़ी मोटा दिखता था, 88 से मैं 69 तक आया था बीच में. तो दैट वाज द ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद इन आई थिंक 2 years. वो भी मेरा भी वैसे ही कुछ था. एंड मैंने कुछ वैसा बहुत कुछ नहीं किया था. मैंने बस वो मैं विजयनगर में रहता था, रोजाना सायाजी जाने लग गया, रोजाना वो ट्रेडमिल करता था. और खाने पे बहुत कंट्रोल किया डेफिनेटली. जो पैसे पहले फ्रीली समोसे कचौरी रोजाना खा लेता था शाम के स्नैक्स में, वो सब बंद कर दिया था. तो वो डिसिप्लिन एक रखा 1-2 साल. उसके बाद देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद लोगों को लगने लग गया था कि मैं बीमार हो गया, क्या हो गया पता नहीं. वो ऐसी रिएक्शन मिलता है ना
सोसाइटी से. बिल्कुल बट वो आई होता ही एम है। रियली हैप्पी कि उसके बाद काफी दिन अब थोड़ा सा ये लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि फिर से थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं हम लोग एक सर्टेन एज के बाद, तो वैसा है. अदरवाइज आई थिंक दैट टाइम इट वाज रियली ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी. Yeah, so I think that is a journey all three of us share. That is a common journey. During COVID, I also around 20, 18, 20 kilos I also lost. थोड़ा सा 3-4 बढ़ गया है. But I also कभी मौका मिलेगा तो मैं आपकी आपकी सबसे मोटे वाली और सबसे नॉर्मल वाली फोटो दिखाऊंगा. यू विल सी द डिफरेंस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. I do not remember you as overweight. I've seen him as overweight, but I don't remember at least कि आपको ऐसा देखा हो मैंने कभी. Anyway, तो इसी बात पे अपन कचौरी खा सकते हैं. प्लीज have it. लीजिए प्लीज. आई थिंक Eat and talk. आई थिंक हम हाफ हाफ शेयर कर लेते हैं, एक ज्यादा बचो. हाँ आई थिंक आई एग्री. यस अरे यार sorry. ये कचौरी बिना इस चटनी के बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी. हाँ वही बोल रहा हूँ. इसका तो मेन कोरी ये चटनी है. Yeah. ये दाल बाल्टी की कचौरी है और ये हरी मिर्ची की चटनी जो बहुत स्पेशल है. अच्छा अच्छा. So you are from GSITS. Yes, yes. And I'm also from GSITS. Do you go back to campus sometime? ज्यादा तो नहीं, जैसे एलुमनाई मीट वगैरह में कभी कभार जाता हूँ. जैसे There was this interesting panel discussion a few weeks ago. I was a part of it. How to, how to increase the ranking of GSITS. जो पहले शायद MP में 1 थी, अब शायद जो NIRF rankings आती हैं, we are not doing too well. Let's put it that way. right. Being an alumni and a key part of the ecosystem in Indore, what do you think we should do, or the institute should do, to regain its lost glory? I don't know आजकल क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसके, but definitely I mean if it can continue to kind of excel in terms of the quality of lectures or the overall outcomes, like in terms of the I think एक तो शायद मेजरमेंट वो भी होता है ना कि कितने लोग हायर हो रहे हैं, कितनी बड़ी कंपनीज में हैं, कितना पैकेज मिल रहा है उनको. तो उस टाइम तो आई रिमेंबर व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई थिंक इट वाज स्टिल नंबर 1. आई थिंक दैट टाइम It was surely number 1. ये आशन लास्ट 10-12 साल में ही कुछ गड़बड़ हुई है. हाँ. तो वो शायद वापस से एक बार पूरा रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग और कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स में हो रही है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स में हो रही है. तो वो थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है. No, this was a significant part of the debate where the blame was not the blame, but the responsibility is partially on us also. एक तो alumni भी है, वहाँ से हम रिक्रूट भी करते हैं और इंदौर में हम एम्प्लॉय भी करते हैं. So there has to be something that we should also contribute to GSITS. As I said, it has lost its old glory. उसमें any ideas from you, Dharmendra? I think थोड़ा सा marketing branding better हो और association with some key people about various industry, IT के, दूसरे इंजीनियरिंग साइड के, अगर कुछ बिग नेम्स हैं प्रोफेसर में तो वो उनके साथ एसोसिएशन हो ताकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं नाम से. एंड दैट मतलब आपको बेस्ट स्टूडेंट अट्रैक्ट करने, बेस्ट टैलेंट बाहर निकालने के लिए भी. तो वो मुझे लगता है कि उस तरह का थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट मारेंगे तो हो जाएगा. Like I'm not an engineering side of things, so but in general this is a very yes we have a lot of people from there. Okay, next segment. और आप खाते भी रहिए. There are no right or wrong answers, but both of you are taking care of the people function, the HR function in your organization. So just idea is to try and get different perspectives of the same issue or same situation. So I'll start with you and then we'll come to you. If all the skills are equal in any individual, like आप hire करने जा रहे हैं किसी engineer, software engineer को, what is that one human trait that you think makes that person stand out from the rest? Everything is equal. अब मेरे को इनमें से चूज करना है किसी को, 4-5 लोगों में से I want to choose one person. So what is that value or that human trait that you think makes that person stand out? I think culturally alignment, that is most important for me. कि अगर culturally aligned नहीं है तो even if somebody could be best as an individual contributor, but he may not be fit for the organization. So I think that's one thing which is very, very important. And how will you test that cultural alignment?
Like there you're are in an multiple interview. angle to that. मतलब we have a culture handbook and everything, and then we do a proper assessment to ensure कि ये culturally उस तरह से align है बंदा कि नहीं है. What is your thought? Definitely, I echo that, and culture. That part is very important. But at the same time, I think the grit to create something new or something, add some great value in anything, some initiative, some grit. So innovation. that grit has to be there, basically. Grit has to be there. Yeah. Yeah. So sometimes when we take interviews, then we try to test that कि उसके अंदर भूख कितनी है कुछ ट्रांसफॉर्म करने की या कुछ इनोवेट करने की. So that is also very important in our kind of technology business. That is definitely important. Yes. क्योंकि स्किल्स है, लेकिन अगर उसको कुछ करने की भूख नहीं, उसको जल्दी है शाम को वाइंड अप करके जाने की, विदाउट इवन कंप्लीटिंग हिज वर्क और हिज और हर वर्क, तो फिर आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर. How does that in an interview? वो देखिए कि जब व्हेन वी गिव सम प्रॉब्लम्स, तो वो समझ में आ जाता है, कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है, कुछ उसका जो अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो आंसर देने का, उसमें समझ में आ जाता है वो काफी. These are things you have to gray your hair on. देखिए वो, हाँ, तो इसीलिए एज यू नो, आई एम श्योर आपके यहाँ भी होते होंगे मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, जब फिल्टर्स सब, जब व्हेन इट गोस टू लॉट ऑफ पीपल आर रिजेक्टेड एट द फाइनल राउंड. क्यों राउंड में भाई, अगर उसकी स्किल अच्छी है तो ऑलरेडी 2 राउंड तो क्रॉस कर चुका है, वो फाइनल राउंड में रिजेक्ट ही क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. कल्चरली फिट होगा कि नहीं होगा, या उसमें ये ग्रिट है कि माइंडसेट की जो हम बात करते हैं कि वो माइंडसेट, तो वो जो ग्रे हेयर वाले ही फाइनली कर पाते हैं वो चीज. Okay, next question, I'll go first with you, Sanjeev. What kind of a person, generally we'll try to see what kind of a person will do well in an organization, but sometimes we want to hire a person, but then we see this person is going to struggle. What are those? The person is capable, good intentioned, honest, but we feel कि यार उसमें कहीं ना कहीं struggle रहेगी and we don't hire that person. What are those things that will make a person fail in any organization? Again, we're not talking about any specific organization, but fail in an organization. यार ये चीज़ होंगी तो गड़बड़ है यार तेरे में. देखिए, एक तो जो कमिटमेंट लेवल है उसका, तो डे टू डे बेसिस पे आई थिंक कितने दिन तक कोई छुपाएगा उसका कमिटमेंट लेवल. अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है या उसके जो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इज क्रिएटिंग लॉट टू मेनी स्टोरीज टू नॉट डिलीवर, देन डेफिनेटली आई थिंक दैट्स अ वन इनिशियल सिग्नल for that person कि there's something wrong. Definitely we can assess that person must be dealing with some family issue or personal issues. So that's our responsibility through HR or through our personal informal communications if he is dealing with something. अगर मुझे अपने को लग रहा है सब कुछ ठीक है, तो something is wrong with that person. He's not a full commitment, or he's too he's distracted, or he's just distracted towards making more money or looking for different offers. तो वहाँ समझ में आ जाता है. देखिए, वो बार बार बात करे, कंप्लेन करे चीज़ों की कि नहीं अपने यहाँ ये का अच्छा नहीं है, अपने यहाँ सैलरी कम है, अपने ये पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी नहीं है, तो वो समझ में आना शुरू हो जाता है. सैलरी कम लगती है, हमेशा ही कम लगती है. तो आपको किसी न किसी फॉर्म में वो कंप्लेन करेगा. देखिए, वो HR से करेगा या खुद करेगा या क्रिप करेगा. नहीं, सही है, एब्सोल्युटली. आई थिंक सेम थॉट, बट हाँ, वही इट इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन द कल्चर साइड ऑफ थिंग्स. वो भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जैसे एक हार्ड वर्किंग वाला एक कल्चर है, ओपननेस वाला कल्चर है, बाकी रोल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें होती है जो अलग अलग तरह से असेस होती हैं कि ये फिट है कि नहीं है. वो उसका एक जनरल आंसर तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो फिटनेस के एंगल अगर हम जनरल बिहेवियरल एक्सपेक्ट लेते हैं तो वो कल्चर वाले बहुत सारे एंगल आते हैं उसमें कि ये बंदा काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या बंदा या बंदी जो भी इन द इकोसिस्टम, इन द कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर हायरिंग कितना फॉर, फिट होगा. तो वो सारे पैरामीटर्स पे ही डिसीजन किया जाता है कि भाई शुड वी हायर हिम. बिकॉज वही है, शॉर्ट टर्म कर सकते हो आप कुछ चीज़ें, बट शॉर्टकट नहीं ले सकते हो. तो इसलिए शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए. थोड़े टाइम के लिए आप सफ़र कर दो, थोड़ा और वेट कर दो, बट हायर द राइट पर्सन. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. How do you think, we'll start with you now. How do you think, what is the interaction or the interplay between people and process? कई बार हम ऐसा लगता है कि यार रेड टेप हो गई, खूब प्रोसेस ही प्रोसेस हो गए हैं, और इससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ, एंड देन यू लूज द टच ऑफ द पर्सन, द इंडिविजुअल. यार मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ, या मैं कोई एक्सेल शीट में रो थोड़ी ना हूँ केवल. हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? तो जब मैं HR ऑटोमेशन का पूरा जर्नी बना रहा था, तो मेरा एक माइंडसेट बहुत क्लियर है कि
ऑपरेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ये सारी ऑटोमेट होनी चाहिए, और जहाँ पे उसके अलावा बाकी सब चीज़ें, तो हम अपने एचआर पार्टनर्स बाकी लोगों को ये बोलते हैं कि भाई प्रोसेस सारा ऐसा करो जहाँ सेल्फ सर्विस वाला हो, किसी के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप सब कुछ बैठ के कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ ज्वाइन भी करना है तो आपको इवन ज्वाइनिंग के लिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन ह्यूमन टच आप पूरा टाइम आपको कनेक्ट में sometimes the process overwhelms the human also. समटाइम्स यस, How do you deal with that? नहीं सी एज यू स्टार्ट अचीव, जैसे हजारों लोगों की आपकी कंपनी है, स्केल के साथ आप जब काम आप छोटे करते हैं। थे आप सब कुछ कर देते थे कि भाई आसान था कि चलो ठीक है कर दो, ये कोई डिसीजन ले लेगा कर दो, लेकिन जैसे जैसे आप स्केल पे आते हो आपको प्रोसेस तो अडॉप्ट Process, करने ही पड़ते हैं, हायरार्की बनानी पड़ती है। आज हमारी लीडरशिप पूरी एक्सेसिबल है, पूरी ओपननेस है, लेकिन स्टिल हायरार्की है, टाइटल्स है, सब कुछ है, क्योंकि वो ग्रोथ और अलाइनमेंट के साथ साथ आपको ज़रूरी हो जाता है कहीं ना कहीं करना, एक स्ट्रक्चर डालना। यही है कि आपकी प्रोसेस इतने लंबी नहीं होनी चाहिए कि पता लगा आपका अगर अप्रेजल हर साल होना है और अगर 4 महीने आपकी अप्रेजल साइकिल है तो फिर प्रॉब्लम है, तो फिर प्रॉब्लम है। और उसके कारण अगर फाइनेंस एंगल से मैं देखूं तो फिर आपके ओवरहेड्स बहुत बढ़ते हैं। टू मैनी मैनेजर्स विद नो अगेन आई डोंट वांट टू ब्लेम, बट टू मैनी मैनेजर्स इज नॉट हेल्पफुल, तो समवेयर हमको वो जितना सिंप्लीफाई कर पाते हैं, और वहीं पे एक ट्रस्ट फैक्टर आता है कि आप एम्प्लॉयज़ पे, मैनेजर्स पे कितना ट्रस्ट करते हो, ताकि आप माइक्रो मैनेजमेंट ना करो, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बिग पिक्चर पे थोड़ा फोकस करो, तो देन सम ऑफ दीज थिंग्स कैन बी एड्रेस्ड इजीली, आई थिंक सो। Sanjeev, your thoughts on this? People versus process, especially as think, Dharmendra said, when you scale up. छोटे से कमरे में, I also remember when we were in, I think कुछ 1000 स्क्वायर फीट का हॉल था वो, that was our office. तो आवाज लगा के ही पूछ लेते थे कि whatever you want to ask. Right. But now we have multiple offices, multiple geographies, multiple time zones also, cultures also. So I think I know this process is important to grow, definitely important to some extent, and these days definitely a lot of automation can be done. तो हमको हमेशा खुद इंस्पेक्ट करना चाहिए एज लीडर्स कि कहीं कुछ बॉदर तो नहीं कर रहा है, कुछ हमारे अननेसेसरली प्रोसेसेस तो नहीं है, वो हमको खुद एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए ना। हम अपने मैनेजर्स को नहीं छोड़ने की ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करके देखो खुद एक दिन, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि ये तो फालतू की चीज हमने बीच में डाल रखी है। Eat your own dog food. I think that is a good take. That is the yes. तो वो आप खुद करके देखोगे, आपको लगेगा ये तो अननेसेसरली स्टेप है बीच में, इसकी जरूरत ही नहीं है। समटाइम्स वी रियलाइज दैट हम क्या जब ग्रोथ के उसमें भागदौड़ में ये सब भूल जाते हैं एज लीडर्स। समटाइम्स वी डोंट हैव इवन वी डोंट बॉदर टू इंस्पेक्ट कि नीचे चल क्या रहा है। तो वो that is important. Very good point. Absolutely, yes. Now going back to the personal front a little, not personal, but personal and professional both, because I know something about your family, so I'll come to that. There are many from Indore who are outside of Indore, and जब भी हम किसी भी फोरम में बात करते हैं, मेरा एक पॉइंट ये रहता है कि यार आप इंदौर वालों को पहले इंदौर बुलाओ, बजाय कि किसी कोई हैदराबाद का नेटिव है या बैंगलोर का नेटिव है उनको इंदौर बुलाओ। So what is the message today that you want to give to them कि यार इसलिए इंदौर वापस आओ? I'm not saying again not Yash or Impetus or Infobase, I'm just saying in general कि यार if you are living in Bangalore or Pune or Hyderabad or Delhi and you are from Indore, like आपके parents भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है, why should they come to Indore, come back to Indore? And I'll tell you the personal angle to this. मुझे पता है अपन तीनों के बच्चे अमेरिका में हैं। I'm sure some part of us wants them to come back to Indore or India, and not necessarily professionally कि आप कंपनी ज्वाइन करो, but at least पास में रहो, आस पास में रहो. So what is that message that you will give to two kinds of people? One is your own child, and one is a professional who is from Indore and not living in Indore, just because of fear of unknown. यार कैसी लाइफ होगी वहाँ पे? जैसा मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ का एग्जांपल दिया, आई थिंक सेम एग्जांपल, कि कहीं ना कहीं एक जो सोशल स्ट्रेंथ चाहिए होती है आपको, एक इकोसिस्टम चाहिए होता है सोशल एंगल से, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली है, और आपको सब कुछ मिलता है वैसे इंदौर में। यू गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट। एक हद तक नाइट लाइफ भी है, अगर आपको नाइट लाइफ भी चाहिए, क्लब्स चाहिए, पार्टीज चाहिए, वो भी यहाँ पे है। कनेक्शंस हैं, पीपल, आपका टाइम, ट्रैफिक, पार्किंग, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंदौर क्लीनेस्ट सिटी हम हमेशा से हैं, 8 साल से हैं, और एक अब कल्चर का हिस्सा बनी गया है, तो अभी हमारे पास सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि, और प्रोफेशनल साइड में भी अब इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर हो गया है। पहले के समय हैंडफुल ऑफ कंपनीज थी, अभी तो हम देख रहे हैं हर नाम इंदौर में है
छोटा या बड़ा जिस भी साइज में, लेकिन है, तो अब कोई रीज़न नहीं बनता कि आप अपनी दूसरी जगह जहाँ बैठे हो वहाँ से इंदौर ना हो, बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे तो हम लोग सब बायस रहेंगे थोड़े थोड़े इंदौर के लिए डेफिनेटली, ये तो रहना ही पड़ेगा ना, अदरवाइज हाउ विल यू, बट मुझे लगता है you are the people who will attract the people. हम लोगों को देख लो। हम लोगों को देख लो। और आपके बच्चों को क्या कहोगे आप? अब बच्चों को भी तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आ जाओ भैया प्लीज। What is your message to expatriates of Indore who are not living in Indore? आई थिंक एक बार उनको वापस इंदौर बुला के, और दे शुड रियली एक्सपीरियंस इंदौर फॉर से 2 days 3 days। उनको हो सकता वो तो आई थिंक नहीं, तो उन्होंने- करते ही होंगे, आज दिवाली नहीं, पे आते ही होंगे। नहीं, बट उन्होंने कुछ एक अपने अंदर कुछ क्रिएट कर रखा है कि इंदौर है सर्टेन लिमिटेशंस और ये नहीं है वो नहीं वो फियर ऑफ अननोन। फिर हाँ, तो उनको बुला के दे शुड रियली एक्सपीरियंस इंदौर इन एवरी वे। उनको क्या चाहिए हम सब देने को तैयार हैं। अगर मैं थोड़ा सा कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी का डिस्काउंट कर दूं, थोड़ा सा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, वो भी डोमेस्टिक, तो हम आई थिंक वी आर एट पार नाउ, फेयरली गुड। तो कितना इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, वो आई नो दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता है, मेरे ख्याल से हर एरिया में बेनिफिट ही मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ द लाइफ में। आपको जो जो चीज़ चाहिए लाइफ में, डेफिनेटली हर आदमी को पैसा चाहिए, पैसा बचाना है। अगर आप किसी भी सिटी से कंपेयर करो, जितनी अपनी पर्टिकुलरली जो आईटी डेस्टिनेशंस हैं, वेदर इट इज बैंगलोर, एनसीआर, गुड़गांव, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब इजीली कितने बार कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 20% तो आपकी जो सीटीसी है वो बचनी है इंदौर में। तो आई थिंक इससे अच्छा प्रोपोजिशन हो नहीं सकता है। और आपको, आपकी फैमिली को, आपको क्लीनेस्ट सिटी मिल रही है, आपको एनवायरनमेंट इतना साफ सुथरा मिल रहा है, सड़कें साफ मिल रही हैं, कल्चर इतना अच्छा है, सोशली आपके सोशल सिस्टम इतना अच्छा है, तो आपको ऐसा क्या है जो इंदौर में नहीं मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से वी डोंट हैव एनी रीजन कि वो कोई इंदौर क्यों ना आए। मैं तो चाहूंगा कि कुछ थोड़ा बहुत भी कोई सोच रहा है तो मैं उससे पर्सनली टाइम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, 2 घंटे उसके साथ, और उसकी कुछ कंफ्यूजन है तो आई रियली वांट टू सिट विद दैट पर्सन एंड रियली वांट टू सेल इंदौर। और वो सब यहाँ पढ़े हैं तो उनके दोस्त, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्रेंड्स या फैमिली। हाँ, तो फैमिली तो है चलो, पर अगर किसी ने हार्ड कोड ही कर लिया है तो वो भी एक तरीका किसी ने हार्ड कोड कर लिया, नहीं मेरे को तो बैंगलोर में ही रहना है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट इज अ गॉन केस। बट ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे जिनको नहीं आना है वापस। कहीं ना कहीं दे हैव दिस अर्ज बट दे आर नॉट एबल टू टेक दैट स्टेप। मेरे एक्सपीरियंस में कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं, मान लीजिए अब उनकी स्पाउस है, अब उनको उनकी स्पाउस को अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में है, उनको इंदौर में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। वी हैव सीन सच टाइप ऑफ केसेस। तो वो केसेस के लिए अगर दीज आर एक्सेप्शंस एक्चुअली, और उनके लिए भी हम उनको भी कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी स्पाउस के लिए भी व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक बिगेस्ट फैक्टर इज वर्क लाइफ। आई थिंक नो मैटर यू आर बिजी और नॉट बिजी। बैंगलोर में, एनसीआर में सबको मालूम है कि 2 घंटे आपको ट्रैफिक में बर्बाद करनी पड़ेंगे। इंदौर में भी अगर इंदौर के ट्रैफिक को खराब भी माने तो भी आप 1 घंटे में काम कर लोगे, आधा से 1 घंटे में, तो एटलीस्ट तब भी आप 1.25 घंटे बचा रहे हो। एंड AQI is less than 100. AQI is very important now. अरे बहुत जरूरी है। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, वो मेरे बच्चे को मैं कौन सी हवा दे रहा हूँ, मेरा जो बच्चा ग्रो हो रहा है वो मैं AQI less than 100 में ग्रो करना चाहूंगा कि AQI 400 में करना चाहूंगा? करेक्ट एब्सोल्युटली। तो आपके बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो विदेश में रह रहे हैं? As I said, this is a common thing between the three of us. This is a very kind of a, I would, मैं जनरेशन की इशू बोलूं या एक कि भाई हमको एक, डेफिनेटली अमेरिका इज टू अट्रैक्टिव एंड हम, बट व्हाई इज इट अट्रैक्टिव? वो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। कुछ है ना, वो कुछ एक कि उस लेवल की क्वालिटी ऑफ लाइफ या उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव सीन दैट वर्ल्ड कि सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ परफेक्ट है, सब ट्रैफिक सेंस फॉलो कर रहे हैं, एंड वो जो एक्सपेक्टेशन दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं हमको ऐसा ही चाहिए, बट वो व्हेन दे सी द अदर साइड, सोशल साइड नहीं है उनके पास। इफ दे रियली केयर फॉर द सोशल साइड कि मेरे ऐसे कल्चर है, ऐसे फ्रेंड्स हैं, देखे, तो डेफिनेटली आई थिंक इट कैन बी अ गुड अट्रैक्शन। तो अगर वो उस पहलू को थोड़ा जज करें, उसको छोड़ के जो चकाचौंध दिखाएं, उस थोड़ी चकाचौंध को डिस्काउंट करके और लाइफ के इस पहलू को देखना शुरू करें, तो आई एम श्योर वी कैन अट्रैक्ट देम। बट ये भी तो होता है ना, लाइक विद चिल्ड्रन, एक साथ पूरी की पूरी बैच ही आजकल अमेरिका जा रही है, तो वो जो बच्चे हैं, द चिल्ड्रन दैट दे हैव ग्रोन अप विद देयर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, ऑल ऑफ देम आर गोइंग
हाँ in one boat actually. Right, एक right. पूरा पैकेज बन के जा रहे हैं, तो बोले यार मेरा तो कोई है नहीं यहाँ पर. Right, So that is one argument I get from my son. correct, हाँ. जब मैं ये बोलता हूँ तो बोले यार आप हो वो ठीक है, बट मेरे तो सारे दोस्त यहाँ LA में है, सैन फ्रांसिस्को में है, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है. तो Definitely, I know it's going to be little tough. it is tricky. Come back by the same boat now. They have to come. Yes, yes. So in that growth journey, I want to show you a picture that you have shared with me, and we'll share it with the audience as well, the viewers as well. This is, शायद इसमें आप मोटे ही लग रहे हो मेरे को. Now that you say, so this is a picture that you have shared with me, Right. and this is, I think, the inauguration of Impetus's first office. Yes, Impetus is, I mean, the main office, I would Main say. office. What kind of? It was in the year 2000. In year 2000. Yes. So what kind of memories do you have? In this picture we have our Speaker of Lok Sabha, ex-Speaker of Lok Sabha, Sumitra Mahajan ji, and Pramod Mahajan ji, and Kailash ji, our very own Kailash ji. What kind of memories do you have from this? देखिए, सबसे पहले तो इस पिक्चर क्रिएशन में मेरी बड़ी इमोशंस जुड़ी हुई हैं कि ये पिक्चर क्रिएट कैसे हुई. एक्चुअली हम लोग, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हम लोग का ये ऑफिस इनॉग्रेट होने वाला था, शुरू होने वाला था. हमने एक 4 फ्लोर की नई बिल्डिंग ली थी, उसको कंप्लीट किया था. संगम हाउस करके पलासिया बिल्डिंग है. तो उस टाइम हम शुरू करने वाले थे, और कॉन्सिडेंटली इंदौर में जो STPI का जो सैटेलाइट स्टेशन शुरू होने वाला था. एंड समहाउ आई गॉट द इंफॉर्मेशन कि आवर यूनियन IT मिनिस्टर मिस्टर प्रमोद महाजन दैट टाइम, ही इज प्लानिंग टू कम टू इंदौर टू इनॉग्रेट दैट अर्थ स्टेशन. देन आई स्टार्टेड my homework to do the licensing with different level, at the central level also, state level also. Sumitra ji se bhi baat ki, STPI se bhi baat ki. I've done everything whatever is to be done to create this 5 minutes movement, and I'm really, I can't forget that moment कि मैंने कितनी मेहनत करी थी इसके लिए. And from that stage to From that where stage you to are this- today. Yes. And I really I'm thankful to Kailash ji also, Sumitra ji also, कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को माना, और लास्ट मोमेंट पे माना उन्होंने. कि लास्ट मोमेंट पे फाइनली दे कन्विंस्ड मिस्टर प्रमोद महाजन that this person is behind us for so long, let's spend 10 minutes with them. तो वो आए वहाँ से, और उन्होंने हमारे ऑफिस का इनॉग्रेशन करा, and it was a really kind of memorable moment for us. Memorable moment. Yes. Very nice. Dharmendra, this is a picture that you have shared with me. Yes. And you have to tell me the story of this picture from, again, I don't know, कब का है, 20-25 साल पुराना picture. From that day to today. हाँ, तो What I is- think this is 2000. Oh, again 2000. 2000, हाँ, जब हमने अपना एक छोटा ऑफिस शुरू किया था बंसी ट्रेड सेंटर में, जहाँ आज भी हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है. And we shared that building initially. हाँ, करेक्ट. Our first office also was in Bansi Trade Center. हाँ, और आज भी वो बिल्डिंग एक अच्छा. You still have an office there. हाँ, we still have an you office, still have and we still have our most of my teams are sitting there today. हाँ, तो आपने वो जगह छोड़ी नहीं है बिल्कुल. वो जगह छोड़ी नहीं, और कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट रहता है कि ऑस्पिशियस वो जगह है हमारे लिए, उस तरह से भी. और वहीं से शुरुआत भी हुई थी, और वहीं से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े. वहीं पे हमने नए ऑफिस लिए. अभी हम जो ऑफिस जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, करीब 150-200 लोग बैठते हैं, वो भी उसी ऊपर ही वहीं पे फ्लोर है. तो छोटे छोटे बक्से होते थे जहाँ पे हम बैठते थे. एक टेबल लगी होती थी, चेयर लगी होती थी, AC का पाइप हमारे सर के आसपास ही लटका होता था. उस तरह का सेटअप था. लेकिन उस समय का एक अलग ही यादें थी. मतलब आज हमारे एक एम्प्लॉय ने 22 साल कंप्लीट किए, तो हम वही याद कर रहे थे सुबह. पर एक अलग ही यादें थी, जहाँ पे फोन की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ आवाज देके ही बुलाना है किसी को भी, और उसी तरह से काम होता था. पार्किंग की भी झंझट नहीं था. पार्किंग का भी इतना. क्योंकि उसी समय अराउंड दैट टाइम वी आल्सो हैड अ वेरी स्मॉल ऑफिस. इस कमरे से भी छोटा ऑफिस था हमारा, जो पहला ऑफिस था. एंड वी वर आई थिंक 1 फ्लोर बिलो योर फ्लोर. करेक्ट 2 फ्लोर्स बिलो योर फ्लोर. करेक्ट. वेरी नाइस. और उस समय एक जापान लाइफ भी हुआ करता था. हाँ, वो ऑफिस हमने ले लिया जापान. अच्छा, आपने जापान लाइफ के ऑफिस लिया था. तो ये हमारे एक बड़ा ऑफिस है वहाँ पे. Okay. All right. So good trip down memory lane. Now this is the last segment for today. अब इसमें ये जो करण जौहर ने चालू किया है, you have to do a rapid fire. हाँ. We'll do a little bit more serious rapid fire. हाँ. Mix and match. अब इसमें मैं चाहूंगा कि आप हर क्वेश्चन के पहले या बाद एक फाकी सेम धानी की जरूर. अच्छा, ठीक है. So that is why this is there. तो आप अपना बोल, we'll start with you Sanjeev first. To pick up your ball. आप अपना बोल उठा लीजिए. And जैसे यार दोस्त मिलके सेम धानी खाइए और क्या. So keep your answer short.
All right, and we'll keep it snappy. This is called the wow meter, and I am the only judge. आपको भले मेरे से agreement हो या disagreement हो, I will decide who the winner is. Okay. All right. You'll start with you first. Sure. Favorite poha spot? Ravi ka poha. That is your favorite, is it? Okay. Mine also. One habit that helped you grow. Again, I would say practicing integrity with everything in the life. Okay. Name 3 top cricketing personalities from Indore. Top. Narendra Hirwani, Amay Khurasia, and I would say even Sachin Tendulkar was born in Indore, right? Rahul Dravid was born in Indore. वेंकटेश अभी लेटेस्ट But Sachin Tendulkar is मुश्ताक also. अहमद भूल गए आप, सीके नायडू भूल गए. I'm interested in the new players. अच्छा, if someone has to open an office in Indore today, which area would you recommend based on food? Based on food, definitely the central part of Indore, which is MG Road to. तो वहाँ ऑफिस खोले और खाए पिए. आज भी मिलेगा ऑफिस, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है. Okay. छप्पन पास में है, राजवाड़ा पास में है. Okay, all right. One must have skill for engineers in 2026, according to you. One skill कि ये होना चाहिए. अच्छा, engineering skill. You are not talking about soft skills. Anything, whatever. I would highly recommend for soft skills. Soft skills. The engineers are generally lacking in that. Normally क्या होता है कि वो तो बाकी सब कॉलेज में कोर्सेज में पढ़ा देते हैं, बट ये सॉफ्ट स्किल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आज भी नहीं दे रहा है कोई ध्यान. Yes, yes. Indore's name came from which temple? इंदौर की जानकारी थोड़ी कमजोर है, कमजोर लग रही है. सम इंदूर और सम. It's called the Indreshwar temple. इंद्रेश्वर टेम्पल. Okay. What do you like about Crystal IT Park, जहाँ हम तीनों का ऑफिस है, and आप जहाँ बैठे हैं? मुझे क्रिस्टल सबसे ज्यादा, मैं इमोशनली कनेक्टेड इस पार्क से हूँ. सबसे ज्यादा पसंद मुझे वो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने इस पार्क को शुरू कराने के लिए कितने एफर्ट्स करे. शायद किसी को आज भी कोई बता नहीं पाएगा, वो मैं ही बता सकता हूँ कि मैंने कितने एफर्ट्स करे. Very nice. And what can improve at Crystal IT Park? I think the infrastructure can be improved to the new kind of new generation infrastructure in terms of the overall Entertainment या restaurant. yeah little overall eating place. बड़ी अजीब सी बात है कि इंदौर के लैंडमार्क में खाने की जगह है. All right. What is your interpretation of the word how? How? इंदौर में बोलते हैं ना how. अच्छा, how that how. How, हाँ. I think आप कब बोलते हो how? when I agree with something, तो I think मेरे हिसाब से वही है कि agreement to demonstrate the agreement. Demonstrate agreement is how for you. Okay, I'll keep that in mind. For many, it is quite the opposite. And Indore को truly global city कब बोलेंगे? When is that point in time or that event that will happen when you, in your mind, you will say Indore has become a global city? I think we are on the right track. थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री की तरफ से. मुझे लग रहा है आई थिंक 3 से 4 साल में वी शुड बी एट द ग्लोबल मैप. You should be. And any particular event in your mind कि यार ये हो जाएगा तो इंदौर ग्लोबल. डेफिनेटली. आई मीन देखिए, मेट्रो ऑलरेडी इज इन प्रोसेस. एयर कनेक्टिविटी वाला जो इशू हम बार बार उसको हम उठा रहे हैं सारे फोरम्स में. आई थिंक वो ऐसा लग रहा है कि हमने इतना उठा दिया है कि वो आज नहीं तो कल 2-3 साल में वो रिजॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आई थिंक वी आर ऑल सेट, बिकॉज एनीवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फ्लाईओवर्स, मेट्रो, ये सब तो चल ही रहा है, एंड एक्सपेंशन, टाउनशिप्स, एंड सबसे अच्छी बात कि रियल एस्टेट में भी काफ़ी एनहांसमेंट हो रहा है. द क्वालिटी ऑफ रेजिडेंशियल टाउनशिप्स आर कमिंग अप. आई थिंक इट्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव लाइक स्टेप फ्रॉम ऑल द रियल एस्टेट कम्युनिटी. एक सेंटेंस में अगर इसका मैं आंसर दूं, जब इंदौर से न्यूयॉर्क की फ्लाइट आ जाएगी, डायरेक्ट फ्लाइट, उस दिन ग्लोबल हो जाएगा. Very good, very good. Thank you, Sanjeev, for that rapid fire. I think I enjoyed many of the answers. Now we'll go back to you, Dharmendra. So we'll start with the same question. What is your favorite poha spot? अब रवि माला गंजे के पोहे 56 दुकान. So अगर संडे सुबह आपको कहीं ढूंढना पड़े तो वहाँ मिल सकता हूँ. One habit that helped you grow as well. I think power of delegation, because वो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक अच्छा लीडर वहाँ पे लाना और एक विनिंग टीम क्रिएट करना. तो देन ऑफ कोर्स ट्रस्ट साथ में आता है, क्योंकि आप लीडर को ट्रस्ट होता है तभी इतना ज़्यादा डेलीगेट कर पाते हो. तो वो डेलीगेशन को मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया, इसलिए
एक वास्ट पोर्टफोलियो शायद थोड़ा आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो आप ये खा सकते हो साथ ओह सॉरी। नेम 3 really big film personalities from Indore. सलमान खान, लता मंगेशकर, किशोर कुमार। Kishore Kumar is not from Indore. He's from खंडवा। Khandwa. अच्छा, जाकिर खान, नॉट फिल्म पर्सनैलिटी, Zakir Khan. कॉमेडियन है तो अब तो मैं भी भूल गया, हाँ, मुझे याद था ये क्वेश्चन लिखने के टाइम. आई थिंक आई एम मिसिंग ऑन द थर्ड। Same question. If someone has to open an office in Indore today, which area would you recommend based on food preferences, food availability? हाँ, मैं आई स्टिल इंसिस्ट ऑन सुपर कॉरिडोर बिकॉज मुझे लगता है इंदौर में खाना तो सब जगह मिलता है, सुपर कॉरिडोर में कहाँ खाना है? सब कुछ है, अच्छा, कुछ है तो कहीं लेके चलो फिर तो कभी. बिल्कुल। अदरवाइज तो एमजी रोड हमेशा ही रहेगा कि एमजी रोड, राजवाड़ा, ये सब एरिया, लेकिन आप ऑफिस स्पेस की बात, ऑफिस की जगह, यस यस, ऑफिस वो पे भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि भाई इकोसिस्टम बाकी सब चीजें Yeah. भी साथ में हो, तो मुझे लगता है कि वो एरिया है फ्यूचर में एंड वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट। तो आई एम सरप्राइज neither of you said अपना ब्रिलियंट एक वाला एरिया, नक्षत्र एंड दैट एरिया. हाँ, That also I think from नहीं, even बट अगर from वो वैसा जो इंदौरी फूड देखें वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे वो हाँ इंदौरी फूड थोड़ा सा क्या है, वो हाँ, चाइनीज वाइनीज फूड मिलेगा आपको वहाँ पे, बट जो इंदौरियन फूड है, आपको जो छप्पन का जो फ्लेवर है, नो वन कैन मैच दैट। कितने मॉडर्न आउटलेट उषा नगर भी एक एरिया है जहाँ पे इंदौरी फूड मिलेगा. उषा नगर वाला आरटीओ वाला एरिया. हमने बीटीसी शुरू में खोला ही 56 के कारण था। लो, so this is not even a wrong question. हमारा भी इट्स वॉकिंग डिस्टेंस, हमारा ओल्ड ऑफिस है जो इट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम छप्पन। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल, पलासिया ऑफिस, सारदा हाँ। हाउस, Sarda House also. वॉकिंग डिस्टेंस। हाँ, करेक्ट। And what is your interpretation / meaning of how? चल रहने दे। चल रहने दे. अच्छा, इनका था कमिटमेंट और आपका है कि छोड़। वो एक्चुअली डिपेंड, क्योंकि वर्ड्स में क्या है कि हम क्या कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं वो that इम्पोर्टेंट is the whole point. That is where the magic of how lies. अब बाकी उसके आगे तो अपन यूज नहीं करना चाहते। दिस इज द क्लोजेस्ट आई कैन से। And one must have skill in 2026 for engineers, software engineers. आई थिंक जो भी सीख रहे हैं उसके साथ सॉफ्ट स्किल डेफिनेटली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आई एग्री विद संजीव, बट एआई साथ में एम्बेड करें अपनी जो भी लर्निंग है, बिकॉज आई थिंक दैट विल बी इन हाई डिमांड इन द फ्यूचर। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली यूज़ केसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करें कि भाई आप पढ़ते हैं लेकिन जब बात आती है कि इसको कैसे यूज़ करना है तो शायद आप उस हद तक नहीं सोच पाते। वो बहुत ज़रूरी है जो भी करियर बना रहे हैं उनके लिए, कि कैसे मैं अपनी इस नॉलेज को इम्पार्ट करूँगा, यूज़ करूँगा और किस इंडस्ट्री के लिए काम आएगी, कैसे आएगी, वो थोड़ा सा लर्निंग ज़रूरी है। Okay. इंदौर की जानकारी. What was the original name of Gandhi Hall? नो आइडिया। नो आइडिया। It's called King Edward Hall. ओके। अंग्रेजों ने बनाया था वो, और 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस दे चेंज इट टू गांधी हॉल. व्हाट डू यू लाइक अबाउट क्रिस्टल आईटी पार्क? आई थिंक वेरी नाइसली मेंटेन्ड, बहुत ही अच्छी है। मतलब जब हमने भी लिया था हमको लगा था गवर्नमेंट इतना अच्छा मेंटेन कर पाएगी क्या, और उन्होंने आउटसोर्स भी किया जो भी किया, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, नो डाउट अबाउट। आई थिंक इट हैज बिकम सम काइंड ऑफ अ शोकेस आल्सो. हाँ, हम 10-15 मतलब हैदराबाद, बेंगलोर सब जगह ऑपरेट कर रहे हैं और देखते हैं कि ये किसी से कम नहीं है। किसी से कम नहीं. आई एग्री विद दैट. यस. एंड व्हाट कैन इम्प्रूव एट क्रिस्टल आईटी पार्क? अगेन सेम, मोर फूड ऑप्शंस, मोर रिटेल, दूसरी चीज़ें आ जाएं, एक छोटा सा बैंक का भी एक्सटेंशन काउंटर हो, एटलीस्ट एटीएम हो। एटीएम तो है, बट इसकी भी कहानी है। इस एटीएम के लिए इतने मैंने चप्पल घिसी है, इतने पापड़ बेले, इफ यू रियली नो द स्टोरी, मतलब ये बहुत एफर्ट्स करे इस एटीएम के लिए। एब्सोल्युटली, हाँ, लगता है तो ही। तो वो आजकल दूसरी चीज़ें ज़्यादा चाहिए ना, जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं उनको काम के अलावा भी बाकी सब चीज़ें चाहिए जो ब्रेकआउट्स के लिए। I remember when we moved from Raffle Tower, Old Palacia to Crystal IT Park. I think it's been 12-13 years now. लोगों ने बोला था कि यहाँ पे हमको बस लगा के दो. How will we come? They wanted a bus from the city center to here to commute, as if this is some kind of industrial, belt or something. जबकि university is right across the road here. Just there, yes. And you already answered this, but still I'll ask you, when in your mind does Indore become global? अगेन मैं वही बोलूँगा कि आज मैं हैदराबाद देखता हूँ या बैंगलोर देखता हूँ कि आपके पास, तो अगर जिस दिन इंदौर से अमेरिका की डायरेक्ट फ्लाइट हो गई या तो उस दिन
I am happy with London also. तो उस दिन हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये पूरी तरह से ग्लोबल हो गया है। I बाकी think तो we are हमारी all journey set है। except international flight. हाँ, I think we are good now. हाँ। Well, thank you very much. That brings us to the end of the rapid fire. I do not have a clear winner, and I'm not being practical about this, political about this. I really do not have a clear winner. I think both of your answers were really good. आपका थोड़ा सा एक नंबर कम होएगा फिल्म पर्सनालिटी का, अब वो मैं इसलिए नहीं काट पा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा. But it was a lot of fun. So this is brings us to the end. Any closing statements any of you want to make? Anything you want to add? We might have missed out on something. You want to add something? I think I would say Indore is ठीक है. I mean, I'm sure people will be criticizing some of the other thing, but we are on the right track. I think government has really had taken the steps or efforts, whatever they can do or they are continuing to do. But I think if we collectively work together, industry and government, I think Indore can be the right IT destination in next few years. Anything you like to मैं add? ये बोलूँगा कि भाई मैं यंग लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो अब करियर बनाएंगे कि अपना पर्पस बहुत क्लियरली डिफाइन करें. व्हाट यू रियली वांट टू डू. डोंट टेक ए ट्रैक जहाँ पे बाद में जाके लगे 10 साल बाद कह रहे हैं मुझे तो डर आना ही नहीं था. वो क्लियरली डिफाइन करें और अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगाएं. आई थिंक हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट है नहीं डेफिनेटली. तो अगर पर्पस क्लियर है हमारा, जिसको हम नॉर्थ स्टार जैसा बोलते हैं, अगर वो हमारा क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, अगर वो क्लियर है और अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं, कोई रीज़न ही नहीं आप सक्सेसफुल नहीं होंगे. मेरा एक्सपीरियंस तो यही है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. Thank you very much, both of you, Dharmendra, Sanjeev. Thank you again for inviting us. me. And it's, I think a different setup. Different setup, yes. और कुछ चीज़ें मुझे आप दोनों के बारे में मालूम पड़ी जो पहले नहीं मालूम थी. And it has been a wonderful experience. We are, always fun to talk to you, meet you in various forums, at home as well. And we will hopefully continue this dialogue and do a second episode when we have more to add. Sure. Not only to the Indore ecosystem, now we'll talk about the Indian ecosystem, maybe, Sure. sometime. Happy to do it. It is a great experience. Good initiative, Sure. Siddharth. Congratulations. Thank you. Thank you. Congratulations. Yeah. आपकी वैसे अभी एक पेटिस और बची हुई है. No, अभी तो कचौरी खत्म करनी है. All right. So that brings us to the end of the podcast. It was a fabulous time talking to both of you. I hope our viewers will also enjoy listening to the nuggets of wisdom that Sanjeev and Dharmendra have provided, and also the fun and banter that we had. We talked a lot about the Indore IT ecosystem, and thanks to their companies, Indore is now employing thousands of IT professionals. And these jobs are very high-paying jobs. One of the things I always say is that the IT sector, of course, I am from that sector, but the IT sector provides these high-paying jobs without polluting and bringing in foreign exchange. So we do all these three things together, which I do not think any other sector does at the same time. So thank you once again, both of you. Thank you for building the Indore ecosystem, and we are richer because of you. As a city, we are richer because of you. Thank you so very much.